آج کل کے حالات میں جو 2-3 سال سے صورتحال سندھ کی بنی ہے کہ مستقل ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹائل کلیمٹیز آتی رہتی ہیں. کبھی سپر فلڈز آ گئے تھے, پھر یہ لاسٹ ایئر مونسون میں جو ہمارے ساتھ ہوا. اس دفعہ پریڈکشن ہے کہ اس دفعہ جولائی سے ستمبر تک ہیوی رینز ہونی ہے, اور سندھ کا جو اپر سندھ ہے وہاں سیلاب آ سکتا ہے, ہیوی فلڈ آ سکتا ہے, اور ان ایریاز میں جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے پچھلے سال جیسی صورتحال ہو سکتی ہے. اب ہم مسلمان ہیں, ہماری اللہ سے لازم توقع بھی ہے شاید نہ ہو کچھ, اور دعا بھی ہے, خواہش بھی ہے, امید بھی یہ رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی سانحہ نہ ہو, لیکن صرف ہم چاہتے ہیں کہ اپنی تیاریاں ضرور رکھیں. اس لیے کہ ڈربن کانفرنس میں بھی یہ چیز ثابت ڈسکس ہوا, اور وہاں اعلامیہ تھا کہ 2022 تک ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پاکستان اور اسپیشلی سندھ کے یہ حصے جو ہیں وہ ڈسٹرب رہیں گے, اس پورا خطہ جو ہے ہمارا. اور اس میں پھر ہم پہلے 29ویں نمبر رسک پر تھے, اب ہم 16 نمبر پر رسک پر آ چکے ہیں, جس میں کہ سیلاب آنے ہیں اور برساتیں آنی ہیں, یہ صرف جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو اس دفعہ بھی کچھ سیٹلائٹ کی رپورٹس تھیں. NDMA نے بھی اس کا جو ہے 4-6 روز پہلے انہوں نے اسلام آباد میں اس کی رپورٹ جاری کی تھی. ہم نے بھی اپنی جو ڈفرینٹ سورسز سے, ویسے تو زیادہ عرصے پہلے ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں آج سے, یا ہمارا سپارکو جو ہے وہ آفیشیلی ہمیں کوئی پریڈکشن نہیں بتا سکتا کہ آج سے 3 مہینے پہلے بتاتے. وہ جون میں کہہ رہے ہیں, جون کے مڈ سے کے بعد ہم آپ کو باقاعدہ بتا سکیں گے. لیکن جو ایک ریسرچ یا جو ڈفرینٹ سیٹلائٹ رپورٹس تھیں ناسا مختلف جگہوں سے, اس میں ہے کہ اس دفعہ پھر ہمارا صوبہ تھریٹ میں ہے. اس کے لیے ہم تیاری کرنے نکلے ہوئے ہیں. 2010 میں کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا, اور اس قسم کی جب یہ قدرتی آفات آتی ہیں تو پوری دنیا میں صرف نہ حکومتیں اس کو سنبھال سکتی ہیں, نہ اس کی قوم, یہ پوری قوموں کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور دنیا میں رزلٹ بہتر رہا. 2010 میں ہمارے پاس بھی بہتر رہا, 2011 میں لیکن بڑا پور رسپانس تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور وہ جا کے صرف 46%, 2010 میں 80% ہمیں ایڈ مل گئی تھی, اور 2011 میں صرف 46% ملی. وہ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کیمپ لگانے پر ذاتی کوششوں سے جا کے ہمیں کچھ ملا, لیکن روٹین میں, جبکہ دنیا میں ہیٹی میں زلزلہ آتا ہے 200% انہیں مل جاتی ہے. ریکوائرمنٹ ان کی 1 روپے کی ہوتی ہے, انہیں 2 روپے مل جاتے ہیں. جاپان میں ایشو ہوتا ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں. امریکہ میں کوئی کترینا آتا ہے, کوئی طوفان آتا ہے, کوئی سونامی آتی ہے, تو وہاں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. پاکستان کو اس انداز میں نہیں لیا جا رہا, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہیومینٹی سب برابر ہوتی ہے. اس لیے ہم نے ہم اس دفعہ تیاری کر رہے ہیں. ہم نے گراؤنڈ پہ بھی تیاری کی ہے, ہم نے ڈونر کمیونٹی سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی ہم نے رابطے رکھے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ کنٹیجنسی پلانس بنائے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ آئندہ اگر کوئی تھریٹس آئیں اس میں خدا نہ خواستہ اتنا بڑا نقصان نہ ہو. اور ریلیف ڈپارٹمنٹ نے تمام اداروں سے مل کر, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا رول پلے کر رہا ہے. PDM میں اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ہم سب مل کے ہم چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہم نے سبق سیکھے 2010 میں اور 2011 میں, ان سبق کو سیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے کوئی بہتر پلاننگ کر سکیں. تو ہم انشاءاللہ پلان کیا ہے ہم نے, اور آئندہ کے لیے ہمارے یہاں میر پخار ڈویژن کی جہاں تک ذکر ہے, سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا ڈویژن تھا, اور اس میں یہاں کے جو کمشنر صاحب ہیں وہ اپنے پورے تمام ڈسٹرکٹس کے مختلف ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اپنی میٹنگس بھی کر رہے ہیں, انہیں کنٹیجنسی پلانس بھی بنائے ہیں. ایک تمام اداروں کی جو 7-8 مین ڈپارٹمنٹس ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, یہ 7-8 ڈپارٹمنٹ, ان کی بھی انہوں نے پرماننٹ ریلیف کے لیے انہوں نے پورا سیل قائم کر دیا گیا ہے. LBOD کو مستقل یاد دہانی کی کوشش کے باوجود یہ ہے کہ LBOD میں ڈی سلٹنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے, اور تقریباً 35% جہاں تک ہماری رپورٹ ملی ہے, 35 جو بریفنگ مجھے بھی ADC صاحب نے دی ہے آن بہاف آف کمشنر میر پخاس, کہ ہم 35% اپنے گولز اچیو کر چکے ہیں. TMA سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو شہر کے اندر ان کے نالے ہیں ان کی ڈی سلٹنگ کریں, ان کو ٹھیک کریں. وہ اس کے علاوہ والنٹیئرز جو ہیں, دیکھیے سب سے پہلے ہمیں سب سے شارٹیج رہتی ہے, چونکہ ہماری جو فیلڈ سٹاف ہوتا ہے, ہمارے ریونیو سٹاف ہوتا ہے, وہ جا کے DC صاحبان ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہوتے ہیں, ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کتنے آپ سب بھی جانتے ہیں. تو والنٹیئرز کا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی انہوں نے, UC لیول پہ تقریباً 35 سے 40 والنٹیئرز انہوں نے
अपने एनलिस्ट किए हैं और 1000 वॉलंटियर्स हमें इस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो था मेरे को ख़ास इस अंदाज से दीगर जगहों पे भी, और ये वॉलंटियर्स का भी हमने रिलीफ डिपार्टमेंट ने भी बाकायदा वॉलंटियर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। और इंशाअल्लाह हम भी, चूँकि पिछली दफ़ा देखिए कुदरती आफात से हुकूमतें नहीं निपट सकती, उन्हें कौमें निपटा करती हैं। पिछली दफ़ा हमारी कौम नहीं निकलती है, जब हम खुद नहीं निकले तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप नहीं निकल रहे हो तो दूसरी सिविल सोसाइटी क्यों है, फिर डोनर क्यों आएगा, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों आएगी। हमारी सिविल सोसाइटी पिछली दफ़ा बाहर नहीं निकली। आज से हम कोशिश कर रहे हैं, उनको हम ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी को, NGOs को, हमारी लोकल कम्युनिटी को। पहले से कंट्रोल रूम कायम किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम ये तमाम पूरे सिंध में हम प्लान कर रहे हैं और यहाँ की जो रिपोर्ट ये मेरे को खास में इन्होंने कायम कर भी लिए हैं कि कंट्रोल रूम कायम करके पहले से एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की जा रही है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि वो जो भी एफर्ट करें वो एक मुत्तहिद तरीके से और मुश्तरका एफर्ट की जाए। डी वाटरिंग पम्प्स का एक बहुत बड़ा इशू था। डी वाटरिंग पम्प्स हमने भी 242 डी वाटरिंग पम्प्स दिए थे पूरे सिंध में, PDMA ने भी दिए थे, इन्होंने खुद भी परचेज किए थे। हमें ये शिकायत मिली थी कि डी वाटरिंग पम्प्स जो है वो कुछ लोगों ने वापस नहीं किए। अब हमने भी लिख दिया है, अपने तौर पे भी उनको रिट्रीव भी कर रहे हैं और उनको रिपेयर भी करा रहे हैं ताकि वो सही हालत में हमारे पास मौजूद हो। कल अगर पानी निकालने की मशीनों की ज़रूरत पड़े, 10-11 लाख की एक मशीन हुआ करती है वो, तो वो हमारे पास सही हालत में मौजूद हो। और उसके लिए एक बात तय है, अगर किसी डी वाटरिंग पंप की झूठी FIR, मुझे शिकायतें मिली हैं कि लोगों ने झूठी FIR कटवा के उसको गुम कर दिया गया है। जी मेरा ख्याल सवाल कर लीजिएगा, मैं बात कर लूँ। डी वाटरिंग पंप जहाँ भी अगर कोई चोरी की FIR कटाई गई होगी जिसकी जानिब से, हम उसकी बाकायदा तहकीकात कराएंगे और अगर झूठी FIR होगी तो उसको वो छोड़ेंगे। डी वाटरिंग पंप्स हमने वो मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए थे। हम किसी को, किसी वडेरे को, किसी जागीरदार को, किसी बासर को, किसी सियासतदान को, किसी वजीर को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो मशीनें अपने घर में रखें। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसके ऊपर बाकायदा हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा है कुदरती गुजरगाहों पर एक और बहुत बड़ा मसला था कि हमने एक्ट भी लेके आ गए उसके लिए कि कुदरती गुजरगाहों पर, उन पर जो कब्जे थे, कुदरती गुजरगाहों पर जो लोगों ने आबादी कर ली थी, लोगों ने ज़मीनें काश कर दी थी, लोगों ने घर बना लिए थे, उसके लिए एक्ट पास हो चुका है और अभी तक ज़रा स्लो है, लेकिन हम समझते हैं कि जून तक हमें इस पर एक्शन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं कम्युनिटी से भी, आम लोगों से भी कहता हूं कि आपको तो पता है, हमें चले हैं नहीं पता चला, सरकार को नहीं पता चल सकता, आपको ज़रूर पता है कि किस गुजरगाह पे किसने कब्जा किया हुआ है। तो लोकल प्रेशर भी अपने उन 62 लोगों पर डालें जो उन गुजरगाहों से अपने कब्जे ख़त्म करें, इसलिए कि जब तक अगर वो कब्जे नहीं ख़त्म होंगे तो खुदा न खास्ता हम बार बार डूबते रहेंगे उसके ऊपर। तो कुदरती गुजरगाहों पर कब्जे भी, वो भी हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। उसके अलावा मीटिंग रेगुलर हो रही हैं, बोट्स भी कुछ तो मौजूद हैं, दीगर बोट्स भी अरेंज कर रहे हैं। मैंने रिलीफ डिपार्टमेंट से भी कहा है कि बोट्स हम पहले से करके रखें, यह ना हो कि एन वक्त के ऊपर। ठीक है, रेस्क्यू में आर्मी का बहुत अहम रोल होता है और पिछली दफ़ा एमरजेंसी रेस्क्यू के अंदर जो आदमी का अपना रोल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी वेल इक्विप्ड हों और पहले से हम अपनी चीज़ें जो हैं वो अपनी परचेज़ कर लें, हम ले लें। तो रिलीफ कैंप्स के लिए उसके अंदर हमने जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें भी हमने पहले से जगह आइडेंटिफाई कर ली हैं। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जो कैंप्स के लिए, टेंट सिटीज़ के लिए जो हमारे अपलिफ्ट की जगह हैं, जो ऊंची जगह हैं, जो उनके ऊपर ताकि जाओ जो पानी में ना जाएं, तो रिलीफ कैंप्स की जगह हम इस दफ़ा पहले से तैयारी से चल रहे हैं। इसलिए कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो था प्रिवेंशन एंड रिलीफ। पहले हम सिर्फ सप्लाई डिपो की तरह काम किया करते थे, इधर से चीज़ आई आगे दे दी, परचेज़ किया आगे हवाले कर दिया, पैसे लिए और फाइनेंस डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट को हवाले कर दिए। अब हम प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे, आप मॉनिटर करते होंगे कि मैं इस 5 महीने में, जनवरी में मैंने चार्ज संभाला, एक बहुत बड़ा इशू था पहले डी वाटरिंग का, उसके ऊपर मैंने इस डिवीजन के मैंने 4-5 दौरे किए, मैंने प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट बना के भेजी, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से बहुत हद तक उस पर अमल भी हुआ। आज फिर मैं एक पूरे सिंधड़ी तालके का विजिट करके आया हूँ और पानी वहाँ से निकाला जा चुका है। लाजिमत कहीं ना कहीं अब भी मौजूद होगा, लेकिन हमने एफर्ट की, पूरे मुतासरा इलाकों में मैं गया 4-4, 5-5, इस 5 महीने में से मैं समझता हूँ कि 4 महीने में घर से बाहर रहा हूँ। आज मैं दोबारा निकला हूँ, आज प्रिवेंशन के लिए निकले हैं। क्या हम इनसे पूछें कि इनकी क्या नीड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की क्या नीड है, इनकी क्या ज़रूरत है, कोई क्या कमी है। और एक और चीज़ हमने मिसाल कायम की है, अब हम ये नहीं करेंगे, आपने देखा होगा सईदाबाद वाक़े में जो हमारा ब्रीच हुआ, हमारे पास क्या होता, पहले डिमांड आया करती थी
वाक़या आज हुआ, एक समरी चलती थी, 15 दिन बाद पैसे आते थे। जब तक हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट वालों से आप खुद अरेंजमेंट करें जी, आप करें, संभालें, पैसे खाना खिलाएं, ट्रांसपोर्ट दें, फिर हम बिल भिजवा दें। उसमें हर सतह पर करप्शन भी होती थी और सही काम भी नहीं हुआ करता था। हमने कंडियारी उसमें सईदाबाद वाक़े में रोडी कैनाल ब्रीच में जिस रोज़ ब्रीच हुआ, मुझसे उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट है हमारी 50 लाख की, तो मैंने उस रोज़ उनको चेक उनके हवाले किया। हम चाहते हैं कि रिलीफ के काम में देर नहीं करेंगे, ये इंसानियत के लिए काम है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और पॉलिसी भी जो है, मैं पार्टी मेरी कोई भी, लेकिन मैं इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी ये है कि मुसीबत ज़दा लोगों को हमने पहले से बचाना है, पहले से उसके लिए काम करना है। और जो मुझे मैंडेट मिला है कि पहली दफ़ा रिलीफ डिपार्टमेंट को अलग किया गया है रेवेन्यू से, दीगर डिपार्टमेंट से, उसके लिए हम बाहर निकले हुए हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ अपने आवाम के लिए, हम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनके भी हम साथ काम करना चाहते हैं कि हम उनका सपोर्ट करें। और आइंदा आने वाले वक्तों में अगर हम अपनी प्रिवेंशन से, अपने जल्दी निकलने से अगर 2 लोगों की जान बचा सकते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा ये रोल है। इस सूरत हाल में हम चल रहे हैं, थ्रेट्स मौजूद हैं। आगे आने वाले मौसम में हम बारिशें भी देख रहे हैं, हम सैलाब भी देख रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में 29 अजला जो हैं वो हमारे जो रिपोर्ट्स मिली हैं, उसकी जो हमारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं सेटेलाइट से, मुख्तलिफ जगहों से, वो 29 अजला और तकरीबन 29 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर मैं कहूँगा अल्लाह करे कुछ ना हो ये, लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, NDA में भी जो कह रही है, उसमें भी सिंध के 11-12 अजला शामिल हैं, जिसमें बदीन है, ठट्ठा है, मीरपुर खास है, उमरकोट है, तरपारकर है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो अलायार है, सांगड़ है, ये तमाम अजला उसमें शामिल हैं जो फ्लड्स के जोन में आ सकते हैं। बाकी अपर सिंध के अजला वो वो फ्लड में और ये मानसून में। इस सारी सूरत हाल पर हम प्रिवेंशन के लिए निकले हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम आने वाली क्लैमिटी को रोक सकें। देखिए जी, 242 डी वाटरिंग पम्प्स जो थे वो रिलीफ डिपार्टमेंट ने परचेज किए थे और उसकी फिगर मुख्तलिफ अजला को दिए गए, जिस ज़िले का इस वक्त मेरे पास याद नहीं है, चूँकि मेरे रिलीफ कमिश्नर, एडिशनल रिलीफ कमिश्नर की वालदा की डेथ हुई थी जिसमें आया था मैं, वो साथ होते थे, लेकिन मुख्तलिफ अजला को दिए गए, उसका पास सारा रिकॉर्ड मौजूद, जो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। 242 हमारे पास से थे और टोटल 800 के करीब दिए गए पूरे सिंध में, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से, TMA ने लिए, लोकल गवर्नमेंट ने दिए, PDMA ने दिए, 242 हमने। देखिए जी, मैंने आज से 15 रोज़ पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर निकाला था इन सब अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, और मैं इरिगेशन से भी कहा था कि हमें बताएं, रिट्रीव करें और रिपेयर करें, हमें सही हालत में चाहिए। 1 हफ्ते बाद मैंने बाकायदा अपने एडिशनल रिलीफ कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बनाई है जो तमाम ज़िलों में जाएगी और फिज़िकल विज़िट करेगी, फिज़िकली उसकी इंस्पेक्शन करेगी कि आया कि मौजूद है, सही हालत में है, नहीं है, अगर गुम है तो कौन जिम्मेदार है, ख़राब है तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए ये देखिए, प्रेसिडेंट ने भी कहा था, मैं उस मीटिंग में था, उन्होंने कहा था कि खेमे भी वापस ले लो। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हिदायत हैं, वो तो कहते हैं कि जो चीज़ें हैं, चूँकि हमें पता है कि आगे क्या होने जा रहा है, तो ये डी वाटरिंग पम्प्स जिसके कब्ज़े में हैं वो हमने दिए हैं। हम अपने 242 को हम हिसाब लेंगे इनसे कि वो कहाँ, और हमें नहीं लेके जाने, आपके लिए छोड़ के जाने, लेकिन उसके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने काउंट सब डिपार्टमेंट अपने अपने करेगा, लेकिन जो मैंने दिए हैं उनको हम जाके, हमारी एक पूरी कमेटी निकल रही है, वो जाके इंस्पेक्शन करेगी और जहाँ नहीं मिले हम उनसे उसका पूरा हिसाब किताब लेंगे और उसको मतलब है कि बीच में नहीं छोड़ेंगे। जुलाई से प्रेडिक्शन है, लेकिन पता कुछ नहीं चलता। देखिए, कुदरती काम है, कुदरती गुजरगाहों के लिए एक्ट पास ही इसलिए किया। एक तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम कोर्ट्स की तरफ से आ जाते हैं, बहुत सारे मामला जाकर कोर्ट्स के अंदर रुक जाते हैं, और मैं समझता हूं कि मैं इस फोरम से अपनी अदालतों से भी कहता हूं कि ठीक है, आप बिल्कुल रिलीफ प्रोवाइड कीजिए, लेकिन थोड़ा सा देखिए कि किस जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है, उसके रिजल्ट किस पे पड़ रहा है, उससे पूरी कौन तबाह होती है, उससे तबाही पूरे इलाकों में आती है। लेकिन मैं इसके लिए बड़ा खुल के कह सकता हूँ कि इन कुदरती गुजरगाहों से हम अपनी पूरी सिंध हुकूमत की ताकत इस्तेमाल करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट करनी पड़ी वो इस्तेमाल करेंगे, फ़ौज को भी लाना पड़ा तो हम इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों को, खुदा न खास्ता अपने सिंध के अवाम को, हम इस पानी में डूबता हुआ नहीं देखना चाहते कि कोई ज़मीन पे कब्ज़ा करे, उसके रिजल्ट में कोई डूब जाए। इसके लिए हम हर जो गवर्नमेंट की ताकत है उसको इस्तेमाल करें। देखिए जी, ये निशानदेही डिस्ट्रिक्ट निचली सतह पर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी आप, क्योंकि ये मैं तो पूरे सूबे में निकला हूँ, हमें तो आती है, हम इतनी जगह हमें ढूंढनी है, लेकिन वो जब आप लोकली मिले, जाके DC से मिलिए अपने कमिश्नर, वो आपको ज़रूर बताएंगे कौन कौन सी जगह स्पेसिफिकली, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सी ऊंची जगह, वो आपको ज़रूर बताएंगे। TMA को हमने नहीं दी, हमने दी है इरीगेशन डिपार्टमेंट को, और मैं समझता हूँ कि डी वाटरिंग मशीनें तो ऊपर से पॉलिसी आई हुई है
سب کو دینی پڑیں گی، جو نہیں دے گا اس کے خلاف ایکشن۔ دیکھیے میں یہاں دیگر ڈپارٹمنٹس کی کرپشن میں بات کرنے نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹاسک یہ ہے، ہم نے لوگوں کو قدرتی آفات سے بچانا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈی واٹرنگ کے ایشو پر جب ہم نے رپورٹ بنائی تو پریزیڈنٹ نے بھی ایکشن لیا، اور ایکشن اریگیشن کے خلاف ہی لیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔